میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ سب سے پہلے آپ کو ثوابی سے خبر دیں گے۔ ثوابی کے علاقے موسیٰ بانڈہ میں بارشوں کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ ثوابی کے علاقے میں جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی کو دیکھیں، پشاور اور خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن ہو یا قبائلی علاقہ جات، وہاں پر جانی نقصان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کل صبح بھی ثوابی کے علاقہ موسیٰ بانڈی میں بارش ہو جانے کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 2 افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو تو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کر دی گئی، جبکہ 5 افراد جو ہیں وہ مکان تلے جو تھے وہ دب گئے تھے، ان کی جو لاشیں ہیں وہ نکال لی گئی ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ جاں بحق بچوں میں 2 بچے اور 3 افراد جو ہیں وہ اس میں شامل بتائے جا رہے ہیں، جن کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ باچا خان جو ہاسپٹل کمپلیکس ہے وہاں پر منتقل کر دیا گئے ہے۔ اسی طرح جو زخمی افراد ہیں ان کو موقع پر طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ جی عدنان شاہد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، کئی مکانات اور پل سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ بالاکوٹ کے دریا میں میاں بیوی سمیت 9 افراد بہہ گئے، جبکہ مدین کا رابطہ پل بھی ٹوٹ گیا، جس سے ریلے میں پھنسے 13 افراد کو نکال لیا گیا، جبکہ بچی اور نوجوان کی لاش بھی برآمد ہوئی۔ دریائے کنہار، دریائے سندھ اور سرن کی قریبی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں، جبکہ دیر بالا میں سیلابی ریلے میں لکڑی کے 4 پل بہہ گئے۔ داموڑی پاور ہاؤس کا حفاظتی بند بھی ریلے کی نظر ہو گیا۔ باٹکوٹ میرا بشام میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ چترال میں سیلاب سے ریشن کے مقام پر گاؤں کا بڑا حصہ دریابرد ہو گیا۔ منسیرا میں حسین بانڈا میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ منسیرا میں ٹانڈا بجنا کا رہائشی دریا سرن میں بہہ گیا۔ تورغر میں لینڈ سلائیڈنگ سے گھر تباہ ہو گئے، رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی۔ بٹاگرام میں شملائی ملکال کے مقام پر گھر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا، مال مویشی اور سامان ریلے میں بہہ گئے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ مدین اور بحرین کے علاقوں میں سیلابی ریلے میں متعدد گھر بہہ چکے ہیں، ہوٹلز کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ 4 میں دریائے سوات میں 4 کے مقام پر اس وقت 85,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 4 کے مقام خیالی پر رابطہ پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پل کی بندش کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر پشاور اور 4 کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ لوئر دیر میں بھی بارش نے تباہی مچا دی۔ دریائے پنچگوڑا میں سیلاب آنے سے زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ ہری پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، متعدد مقامات پر پل پانی میں بہہ گئے۔ اور شہر قائد میں بارش کے بعد ہونے والی تباہی کی بات کریں تو کراچی میں گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ کراچی کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تجاوزات کے خلاف کلین اپ آپریشن گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہے۔ عطا حسین سے مزید جانیں گے۔ عطا، تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہے؟ جی بالکل، آج جو ہے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہے۔ گجر نالے کے اطراف میں غیر قانونی کمرشل تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ آج بھرپور آپریشن کیا جائے گا۔ پہلے دن دکانداروں کو ضروری سامان ٹھکانے لگانے کا کہہ دیا گیا تھا، تاہم آپریشن کے پہلے دن سافٹ انکروچمنٹ کی گئی تھی۔ گجر نالے پہ جو ہے پہلے مرحلے میں جو ہے تجارتی عمارتیں، دکان کے سیٹ کو گرایا جائے گا اور آپریشن کا آغاز جو ہے کیفے پیالہ، لیاقت آباد اور نالا اسٹاپ نیو کراچی تک تجاوزات کے خلاف کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں رہائشی عمارتوں کو متبادل فراہم کرنے کے بعد جو ہے وہ جو غیر قانونی رہائشی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کو گرایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عطا حسین آپ کا۔ بارش ختم مگر کراچی والوں کا امتحان جاری۔ دعووں، وعدوں اور اقدامات کے باوجود کلفٹن، نیا ناظم آباد، اولڈ ایریا، ٹاور، اردو بازار اور کھارا در میں پانی جمع ہے، جبکہ کے پی ٹی انڈر پاس کو بھی بند کر دیا گیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش برسانے والا سسٹم ختم ہو چکا، تاہم ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود شہر کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ ڈیفنس کے علاقوں سے مکمل طور پر پانی نہ نکالا جا سکا۔ بخاری کمرشل اور خیابان مسلم میں اب بھی پانی جمع ہے۔ نیا ناظم میں بھی کئی فٹ پانی سے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت واٹر سنکشن پمپ لگا لیے۔ مشینوں سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ بڑے نالے بند ہونے کی وجہ سے نکاسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اولڈ ایریا، ٹاور، اردو بازار اور کھارا در بدبودار گندے پانی میں گھرے ہیں۔
KPT अंडरपास को भी आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद कई दिन KPT अंडरपास में पानी खड़ा रहा, जिसके बाद शहरियों ने अंडरपास की हालत पर खदशात का इजहार किया था। तकनीकी माहिरीन से अंडरपास की मजबूती से मुताल्लिक राय ली जाएगी। मुआयने के बाद अंडरपास खोलने का फैसला किया जाएगा। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मदयत में 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CBC के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज भी मंगवाई गई है। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मुजाहरा नाकाबिले कबूल। पानी बंद है तो एहतजाज बनता ही नहीं। निकासी का निजाम अगर ठीक नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर। समंदर किनारे बसे हो, डूबना तो बनता है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सामने मुजाहरा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CBC दफ्तर पर एहतजाज करने वाले 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दरख्शां थाने में कार सरकार में मुदाखलत पर दर्ज किया गया। मुकदमे में धमकी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई। मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर CBC की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। मतन में कहा है कि शरपसंद अफराद ने दफ्तर के शीशे तोड़े, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और अमले को धमकियां दी गई। मतन के मुताबिक मुजाहरा करने वाले अफराद के साथ शरपसंद अनासिर थे। CBC के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज मंगवाई गई है। और कोरोना वायरस का जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 424 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। मज़ीद जानेंगे सज्जाद कासमी से। सज्जाद, मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कितनी है और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो एक्टिव केसेस की तादाद में वाज़ी कमी देखने को आ रही है। जो अब तक एक्टिव केसेस की तादाद अब जो है वो 8,761 जो है रह चुकी है पूरे मुल्क भर में। और पिछले 24 घंटों में 424 जो है नए केसेस सामने आने के बाद जो है मजबूर जो तादाद है कोरोना के केसेस की वो 2,97,014 हो चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए अमवात के हवाले से तो पिछले 24 घंटों के दौरान 10 नई अमवात जो है वो रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद मजमूई तौर पर अमवात की जो तादाद है वो 6,328 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो 21,744 जो है मजमूई तौर पर जो नए टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद जो है अब देखा जाए मजमूई तौर पर जो टेस्ट की तादाद है वो इस वक्त 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अगर ओवरऑल देखा जाए इस्लामाबाद में केसेस के हवाले से तो पिछले इस्लामाबाद में भी जो मजमूई तौर पर जो केसेस की तादाद है वो 15,699 हो चुकी है। KP में 36,340 है, पंजाब में 96,983 है और सबसे ज्यादा जो तादाद है वो सिंध से सामने आई है, जहाँ पर जो सिंध में सबसे ज्यादा 1 लाख जो है 1,30,000 तक जायद जो है केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका। और अब आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। MCI की तरफ से बड़े नालों की सफाई का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट करेंगे लमदार बलूच। जिली इंतजामिया की तरफ से हालिया तेज बारिशों और मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर विफाकी दर हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से इस्लामाबाद में बड़े नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। MCI के तर्जमान मोहसिन शिराजी का कहना है तेज बारिशों की सूरत में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर लिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट उसको हमने 3 शिफ्टों में कर दिया है कि राउंड द क्लॉक वो मौजूद रहेंगी कि जहाँ पे कहीं बेसमेंट बनने का, पानी का या ऐसा इशू आता है तो वो घरों पे पहुंच के और पानी निकालेंगे। एक तो उनका ये हुआ। जब से ये मानसून शुरू हुआ है हम MCI के जो हमारे मेयर ऑफ इस्लामाबाद की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने नाले साफ करने शुरू कर दिए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन इस्लामाबाद के नाले जो हैं वो साफ है। और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के तर्जमान का मजीद कहना था कि तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है ताकि शहरियों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और शहर कायद की ही बात करें तो कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में दूसरे रोज भी ऑपरेशन किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने तजावुजात हटाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अता हुसैन। जी अता। हालिया बारिशों के बाद जो शहर की सूरत हाल पैदा हुई थी, शहर में तबाहकारियाँ हुई थी, उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जो है बरसाती नालों के एतराफ़ में कायम जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उनको साफ़ करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इसको सॉफ्ट ऑपरेशन का नाम देकर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें दुकानों के शेड्स और छपड़े वगैरह जो हैं वो तोड़े गए थे। ताहम आज कल जो है दुकानदारों को जो
यहाँ पे गैर कानूनी दुकानें हैं उनको जो है कह दिया गया था कि अपना सामान जो है वो एक जगह कर लें, ताकि आज से यहाँ पे जो कार्रवाई है वो भरपूर एक्शन किया जाएगा। ताहम इन तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है यहाँ के जो मकीन हैं, जो नाले के एतराफ में जो मकीन रहते हैं जिनके घर टूटेंगे, वो मकीन जो है सड़कों पर निकल आए। सरापा एहतजाज है। मेरा कैमरामैन असगर अगर दिखाए कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इन मकीनों का यही कहना है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं तो हम घर के किराए कैसे अदा करेंगे। हमें कोई हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। सिर्फ एक दिन पहले ही जो उनको कहा गया था कि अपने घर, आपके घर तोड़े जाएंगे, अपना सामान जो है हटा लें यहाँ से। अब उनका यही कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, या तो हमें कोई मुतबादिल जगह दी जाए ताकि हम अपना गुजर बसर कर सकें। अगर हम बात करते हैं आज इस पहले मरहले में जो है यहाँ पे गुज्जर नाले से लेके लियाकताबाद और 3 अट्टी तक जो है नालों के एतराफ जो इंक्रोचमेंट है उसका सफाया, जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उसका सफाया किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मरहला आएगा वो मकानात का आएगा, उसको पहले सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद फिर जो गैर कानूनी जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। जी अता हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया लोड शेडिंग और अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से किए गए मुआहिदों की पासदारी न करने पर भी एक्शन लेते हुए उनकी तफसीलात हासिल करने की हिदायत कर दी है। के इलेक्ट्रिक पर अवाम से ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए की रकम हथियाने का भी इल्जाम है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इससे कबल के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ था, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहर कायद के बिजली सारफीन के लिए बुरी खबर है। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारफीन के लिए बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी की अहम बैठक। कारकर्दगी के लिहाज से बदतरीन नताइज फराहम करने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक के सारफीन के लिए बिजली महंगी करने की असूली मंजूरी दे दी गई। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली टैरिफ बढ़ाने के फैसले का इतलाक 1 सितंबर से होगा, जबकि अक्टूबर 2020 के बिजली बिल में इजाफा भी शामिल होगा। इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। दूसरी जानब वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 4.7 अरब रुपए की सब्सिडी भी देगी। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने रोजवेल्ट होटल के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी भी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक रकम कर्ज और वाजबात की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची में तूफानी बारिशों की तबाही का शिकार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर के मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं हमारे पास पक्के मकानात होते तो हमारा लाखों का नुकसान ना होता। मजीद तफसीलात शहजादा मोइन की रिपोर्ट में देखिए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले ने पाकिस्तान कोचिंग सेंटर की रिहायशी कॉलोनी को तहस नहस कर दिया। मकानात की दीवारें गिर गईं, फर्नीचर तबाह हो गया, घर का सामान इस्तेमाल के काबिल ना रहा, बारिश का पानी कीचड़ बन गया, बच्चे रुल गए। मुलाजमीन का कहना है कि हमारी कोशिशों से ही खिलाड़ी मुल्क के लिए मेडल लाते और परचम बुलंद करते हैं। अगर हमारे पास पक्के मकानात होते तो आज ये हाल ना होता। हुक्काम बाला हमारी हालत पर रहम करे। कोचिंग सेंटर को खूबसूरत बनाने में हर चीज में हम काम करते रहते हैं, पूरी कॉलोनी बल्कि सारा स्टाफ। तो हमारे तरफ हमारी ये तबाही जो हुई है, ये सारा बारिश ने तबाही की हुई है। इसके लिए हम आला काम को, मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को हम दरखास्त करते हैं कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। स्लेटें तैयार हो रही है, होते होते इसको 15 साल हो गए हैं, मगर न स्लेटें तैयार हुई। हमारे घर आप देख रहे हो तबाह बर्बाद हो गए हैं। किसी ने कोई पूछा भी नहीं आज तक। 15 साल से मुलाजमीन की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। खेलों की सरगर्मियां तो बहाल हो जाएंगी, लेकिन मुलाजमीन के मसाइल कौन हल करेगा। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। उधर लाहौर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन ना तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई वर्क किया गया है और ना ही सड़कों की तामीर नौ। सड़कों की अबतर हालत से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अली मलिक से। जी अली। जी बिल्कुल, लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इस पर जो है वो नजरसानी नहीं की जा रही।
कई ऐसी सड़कें हैं जो अरसा दराज से यहाँ पे टूट फूट का शिकार हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे एक जो है ये नेपियर रोड जो है, ये कई अरसे से यहाँ पे जो इंतजामिया की जानिब से जो है इस पर कोई नजरसानी नहीं दिखाई दी जा रही। ये सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। अवाम को यहाँ पे इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सफर जो करना वो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और अगर यहाँ पे मैं रूट की बात करूँ तो मेरे इस दाएं जानिब जो है वो मकलोर मार्केट और जो ये नीला गुंबद मार्केट है वो पड़ती है, और इसके बरस जो है वो वहाँ से म्यू अस्पताल जो है वो रोड निकलती है। इस वक्त हम एक चौक में मौजूद हैं जहाँ पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर का यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो है यहाँ पे शहरियों को कई मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो तजावुज़ात भी और कारोबार की बात की जाए तो यहाँ पर कारोबार भी शदीद मुतासिर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं ये रोड कब से बन रही है और क्या मुश्किलात का सामना। ये तकरीबन 1 साल हो चल रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है, हमें 1 साल हो चला, ये रोड पूरा बंद किया हुआ है। लोगों की इतनी मुश्किल हो रही है, ये दिखा सकते हैं आप कैमरे में, किसी के साथ मरीज है वो यहाँ पे उतार के रिक्शे वाला पैदल जाते हैं अस्पताल। ये नीचे दुकानें हैं, दुकानें वाले रो रहे हैं, किराया उनको पड़ गया, जब 1 साल से दुकानें बंद है। गरीब बंदे का निज़ाम दरम बरम कर दिया ये तब्दीली सरकार ने। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना, दुकानदारों का यही कहना है कि यहाँ पे कारोबार करना इस वक्त निहायत मुश्किल का सामना करना दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कारोबार की बात करूँ तो यहाँ पे दीगर ऐसी दुकानें हैं जो किराए पर हैं, जिसका किराया उन्हें माहाना भरना तो पड़ता है, मगर कोई ग्राहक यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रोड है, जो सड़क है, वो दोनों तरफ से जो है वो बिल्कुल जो है मुतासिर दिखाई दे रही है। इंतजामिया की जानिब से इसको साल से ज्यादा हो चुका है, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। अली मलिक लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पेशावर शहर में तामीराती काम तो जोरों शोर से शुरू किया जाता है मगर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। बादशाह चौक में रोड के दरमियान में पड़ा गड्ढा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अदनान शाहिद मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए, इंतजामिया की जानिब से पेशावर शहर में तामीराती काम तो जोरों शोर से शुरू किए जाते हैं मगर उनको मुकम्मल करना इनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल साबित हो जाता है। पेशावर शहर की अहम शराएं जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक में, और यहाँ पर भी रोड पर जो है बिल्कुल बीच में जो है वो एक खड्डा जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो आए रोज़ ट्रैफिक हादसात हैं उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको दिखा सके तो इस वक्त रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है। ईंटें जो हैं वो रोड किनारे रखी गई हैं। ट्रैफिक की रवानगी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल दिखाई दे रही है, मगर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। इसके बिल्कुल साथ ही जो है म्यूनसिपल का जो दफ्तर है वो भी मौजूद है, मगर जो इक़दामात किए जाते हैं, कहा जाता है, दावे किए जाते हैं, मगर उसके जो है बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो रोड किनारे जहाँ पर दीगर मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो उसी तरह जो गंदे नाले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। उनके ऊपर जो है जो बंद करने का सिस्टम है उनको वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नाले जब ये भर जाते हैं तो ये पानी जो है, गंदा पानी जो है वो रोडों की तरफ आ जाता है, जिसमें उसमें भी मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो जन्म ले लेती हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो काफ़ी हद तक किए जाते हैं, मगर ये दावे जो हैं वो इफ़ा होते हुए नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा भी बन जाता है। मगर जब रात की तारीकी में जब लोड शेडिंग की जाती है तो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब। अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में तरक्याती मंसूबे ताहाल मसीहा के मंतज़र हैं। शहर के मशहूर एक मोरिया और 2 मोरिया ट्रैफिक ब्लॉक और हादसात की अलामत बन चुके हैं। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में तब्दीली सरकार वैसे तो कोई तब्दीली ना ला सकी, मगर साबका हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल ना कर सकी। लाहौर के मशहूर एक मोरिया और 2 मोरिया पुल अरसा दराज से इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। रोजाना हमें इसका सामना करना पड़ता है बड़ी तकलीफ से, इतनी ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और फिर गुजरा भी नहीं जाता। 2 साल हो गए ना, ये छोटा सा काम था, ये नहीं बना। ये इसलिए बारिश होती है, गंद बहुत पड़ता है, इधर हर बंदा परेशान है
वहाँ परेशान है। ये रश देखो कितना है। अक्टूबर 2017 में एक मोरिया पुल पर शुरू होने वाला मुरम्मती काम ताहाल अधूरा है। मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल सड़कें न सिर्फ 24 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक की वजह बनती हैं, साथ ही आए रोज हादसात भी रूनुमा होते हैं। बारिश का पानी हो या गटर का पानी, कई हफ्ते इन मसरूफ तरीन पुलों की जीनत बना रहता है। वो इन्होंने पुल बनाया, एक दुकान बना दी है, उसका कोई फायदा नहीं अवाम को जलील करके रख दिया इन्होंने। देखें 6-6 इंच नीचे जमीन के अंदर खड्डे हैं, उधर आगे पानी खड़ा होता है, नाली का गटर में से पानी निकल रहा होता है। जो बंदा गुजरता है उसके कपड़ों में पड़ता है, निजस हो जाते हैं कपड़े, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक और हादसात से तंग इलाका मकीन हुकूमत वक्त से इल्तजा करते ही नजर आते हैं कि जल्द ही इसका सदेबाब किया जाए ताकि वो भी बगैर किसी ताखीर के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में हालिया बारिशों से शहर भर की अहम शाहराहों और सड़कों पर पानी जमा होने से टूट फूट का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरी आए दिन हादसात का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हालिया बारिशों से शहर भर की आम शाहराहों सड़कों पर पानी जमा होने से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। मेन ऑटोबान रोड, फतेह चौक और लतीफाबाद यूनिट नंबर 10, 11 और 12 की बेशतर सड़कों में पानी जमा होने से जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरी आए दिन हादसात का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर की आम शाहराएं पहले ही टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन हालिया बारिशों से हालत और अबतर हो गई है। ऑटोबान का रोड है, ये पहले से रोड टूटा हुआ है। इधर पहले बल्जिया जी इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। बुरा हाल हुआ हुआ हैदराबाद की सड़कों का। हालांकि मेन शाहराह ही हैदराबाद की ऑटोबान लिंक होता है इससे, उसके बावजूद इतना पानी खड़ा है इधर। इतना हर रोड टूटा पड़ा है, जगह जगह खड्डे हैं। हम गरीब लोग जो है बाइक जो चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, हम लोग ख्वार हो जाते हैं रोडों पे। रोड खराब है, यहाँ से लेके आगे तक बिल्कुल खराब है। गदा गाड़ी भी नहीं चल सकती है, तो ये गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर भर की आम शाहराहों और सड़कों की तामीरें नौ करवाई जाए ताकि शहरी होने वाले हादसात से बच सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। गुजरांवाला में अंडरपास पर तामीर किए जाने वाले रेल पुल साल से मुरम्मत न होने के बायस खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से साजिद अवान की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला शहर की सबसे मसरूफ शाहराहों में से एक शाहराह डीसी रोड है, जहां करोड़ों रुपए से तामीर किए जाने वाले अंडरपास के ऊपर रेलवे का पुल है, जो रेलवे हुक्काम की गफलत और नाअहली के बाइस मुकम्मल तौर पर जंगालूद हो चुका है। अरसा कई सालों से मुरम्मत न होने के बाइस इसकी चादरें फट चुकी हैं, जबकि नट बोल्ट भी ढीले होकर खुलते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पुल की खस्ता हाली के बाइस पुल के नीचे से गुजरते वक्त भी डर लगता है। जगह जगह से टूटी हुई लोहे की चादरें गिरने से कोई जानी नुकसान हो सकता है। इसके नीचे से गुजरते हैं, बहुत डर लगता है कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। हुकूमत से अपील है कि इसको नया बनवाया जाए। हुकूमत का इधर कोई भी जो है ना तवज्जो नहीं है, तो चाहिए कि इसकी जो है ना तमीर किया जाए इसको। अंडरपास का पुल बहुत खस्ता हालत में है, इधर से अभी ट्रेन गुजरी है तो देख के खौफ आ रहा था। इस पुल की हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ये पुल जोर जोर से हिलता है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की सूरत इख्तियार कर सकता है। रेलवे हुकाम को चाहिए कि किसी भी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय रेलवे ब्रिजेस की फिलफौर मुरम्मत की जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। मुल्तान में वापडा टाउन की रिहायशी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, वापडा टाउन अपनी इब्तदा से ही मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार चला आ रहा है। इस वक्त भी वापडा टाउन बचाओ तहरीक के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि इलेक्शन तवील अरसे से नहीं किए गए, जिसकी वजह से वापडा टाउन में इस वक्त बहुत सारे तरक्याती काम भी नहीं हो सके और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं आपका मौक़िफ़ क्या है, किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुजारिश ये है कि वापडा टाउन में पिछले साल अगस्त से इलेक्शन ड्यू थे। उससे पहले रजिस्ट्रार साहब का एक फ़ैसला है 16A का, जिसके तहत वहाँ पर स्पेशल जनरल मीटिंग का इनेकाद होना है, जिसमें तमाम रहायशियों को इलेक्शन लड़ने का हक़ मिल जाना है। रजिस्ट्रार साहब का फ़ैसला है, रहायशियों ने उसको इंडोर्स करना है। अब वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। पहले बिल्कुल कोरोना था, लेकिन अब जब से कि कोरोना ख़त्म हो गया है, हमने भी वहाँ कन्वेंशन किया SOPs को फॉलो करते हुए। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब वहाँ पर SGM के लिए एक लेटर लिखें और रजिस्ट्रार साहब SGM का इनकाद करवाएं।
تاکہ لوگوں کو الیکشن کا موقع ملے اور وابڈا ٹول کے مسائل کا حل ہو، مسائل کا حل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ان کے مطالبات ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں تاکہ وابڈا ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کو وہاں پہ جو رہائش کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے اس کا اختتام ہو سکے۔ احمد کاشف ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان ریلوے کو نئے مالی سال کے ابتدائی ایام میں ہی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ریلوے کو مسافر، گوڈز، متفرق کوچز اور سینٹری سمیت تمام مدات میں ہدف سے کم آمدنی ہوئی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی ٹرین آپریشنز پر عدم توجہ بھاری نقصان کا سبب بن گئی۔ رواں مالی سال 2020-21 کے پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے آمدنی میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ ریلوے کو ہدف سے 4 ارب 76 کروڑ 81 لاکھ روپے کم آمدنی ہوئی۔ رواں مالی سال جولائی تا 20 اگست پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے کو مسافر، گوڈز، متفرق کوچز اور سنڈری سمیت تمام مدات میں ہدف سے کم آمدنی ہوئی۔ ریلوے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا 20 اگست پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے کو صرف 5 ارب 26 لاکھ روپے آمدنی ہوئی۔ آمدنی کا حکومتی ہدف 9 ارب 77 کروڑ 8 لاکھ روپے رکھا گیا تھا۔ پہلے 50 روز کے اختتام پر ریلوے کی مسافر آمدنی کے ہدف سے 3 ارب 42 کروڑ 31 لاکھ روپے کم آمدنی ہوئی۔ متفرق کوچز کی مد میں ریلوے آمدنی میں 29 کروڑ 87 لاکھ روپے کم ریکارڈ کیے گئے۔ گڈ سیکٹرز میں ریلوے کو 95 کروڑ 28 لاکھ روپے کمی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ سنڈری کی مد میں بھی ریلوے آمدنی ہدف سے 9 کروڑ 34 لاکھ روپے کم ریکارڈ کی گئی۔ ریلوے انتظامیہ کی ٹرین آپریشن پر عدم توجہ کے باعث محدود ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہوا۔ ملک بھر کی طرح سکھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے اور شہری حکومت سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے مہنگائی کے طوفان سے غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ آٹا، چینی، دالیں، آئل سمیت دیگر اشیاء خرد نوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، جس سے عام آدمی کے ساتھ ساتھ تاجر بھی سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں نے محنت کش غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت سے عوام کو جو امیدیں وابستہ تھی وہ امیدیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں تمام اشیاء خرد نوش کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ بڑھتا جا رہا ہے، چینی کم کر دوں گا بڑھتی جا رہی ہے، آئل کم کر دوں گا بڑھتی جا رہی ہے۔ جس چیز پہ کم کہنے کا نام لے رہا ہے وہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہم تو اس کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی کسی بھی چیز کا یہ نہیں بولنا کہ یہ چیز کم کر دی ہم نے یا یہ چیز کم کر رہا ہوں میں، بس ہمارے کو 13,000 روپے سیلری پہ گزارا نہیں ہو رہا، اب ہم خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ بڑھ چکی ہے اس ٹائم پہ، عوام سمیت چھوٹے تاجر جو ہے سب یعنی کہ اس ٹائم بہت پریشان ہے۔ گورنمنٹ جو ہے مہنگائی پر قابو پانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ آٹا دیکھ لیں وہ 70 سے 80 روپے کلو بک رہا ہے اس ٹائم سکھر شہر کے اندر۔ چینی جو ہے 100 روپے بک رہی ہے، جبکہ عوام کی سہولت کے لیے گورنمنٹ نے جو سستے اسٹال لگائے تھے وہ بھی اس ٹائم بند ہو چکے ہیں۔ یوٹیلیٹی پہ جائیں تو وہاں پہ چینی اور آٹے کا نام و نشان نہیں ہے۔ عوام جو ہے پریشان ہو چکی ہے اس ٹائم پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے تاجر جو ہے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ دن جو چینی 70 روپے کلو تھی اب وہاں 95 روپے چل رہی ہے۔ جو آٹا 45 روپے کلو اٹھاتے تھے اب وہ آٹا 60 روپے مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ دالیں، مرچی، جو بھی چیز لوگ ہیں نا سب چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ حکومت تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزارت داخلہ سے انسداد تشدد بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا ہے۔ مہذب جمہوری معاشرے میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ تشدد ہمارے آئین اور اسلام کی روح کے منافی ہے۔ تشدد کا خاتمہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ سے انسداد تشدد بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا ہے۔ مہذب جمہوری معاشرے میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ تشدد ہمارے آئین اور اسلام کی روح کے منافی ہے۔ تشدد کا خاتمہ ہماری بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو سارا کرائسس ہے اگر اس پہ بھی کوئی آ کر صرف امدادی پیکج کا اعلان کر کے چلا جائے گا تو اس سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ اب خدا کے واسطے کہ اس کراچی کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں اور اس کا کوئی مستقل حل تلاش کریں، اور اس کا مستقل حل 6 نکات پر ہے کہ اس کا
प्रॉपर सेंसस करें, इसके प्रॉपर सेंसस के हिसाब से इसके जो है वो इसको सीटें एलोकेट करें, इसके पैकेजेस को एलोकेट करें। इसको 18वीं तरमीम में सूबे को जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है वो सूबाई खुद मुख्तारी शहरों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी टाउनों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी यूनियन काउंसिल को भी मिलना चाहिए। NFC अवार्ड में जो सूबे को पैसा मिलता है वो NFC अवार्ड का पैसा सूबे का वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी मर्जी मैं दूं ना दूं, उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। NFC अवार्ड के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए ताकि तमाम डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिले। कराची को जो 18 टाउन्स ख़त्म करके एक डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके 6 डिस्ट्रिक्ट और सब 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, इसको ख़त्म करके कराची को 18 टाउन्स और 1 डिस्ट्रिक्ट पे दोबारा बहाल किया जाए। और ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर दे दिया गया है और बाद में उसको सूबाई हुकूमत के अंडर दे दिया गया है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए, सिटी गवर्नमेंट की मास्टर प्लान डिपार्टमेंट बनाया जाए और उसको सेपरेट किया जाए, उसको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से उसको सेपरेट किया जाए। और यूनिटी ऑफ कमांड 2007 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तमाम वो एरियाज जो कि सिविल एरियाज हैं और वो तमाम जो मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल हैं कराची के अंदर, उन सिविल एरियाज को वहाँ से निकाल कर उसको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में दी जाए और वहाँ पर उसका करता धरता इलेक्टेड मेयर हो, म्यूनिसिपल सर्विसेज का करता धरता इलेक्टेड मेयर हो। ये कर लेंगे तो कराची का मसला हल हो जाएगा। और ये जो एनक्रोचमेंट, ये जो नाले हैं, 3 नाले हैं, गुजर नाला है, लियारी गुजर नाला है, औरंगी नाला है और महमूदाबाद नाला है, ये अगर अपनी ओरिजिनल विड्थ पे और अगर ओरिजिनल अपनी डेप्थ पे इसको बहाल कर दिया जाए तो कराची के ड्रेनेज का 80% कराची का मसला हल हो जाएगा। 80%, 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको ओरिजिनल विड्थ पे लेकर जाने के लिए, ओरिजिनल डेप्थ पे लेकर जाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एनक्रोचमेंट वहाँ पर 50 सालों से है, कोई बड़ा मसला नहीं है। कराची में एक सक्सेसफुल मॉडल की ऑलरेडी मिसाल मौजूद है और वो है लियारी एक्सप्रेसवे। लियारी एक्सप्रेसवे पूरा एक दरिया है, वहाँ पर 35,000 से ज़ायद लोग नालों में रह रहे थे। लियारी एक्सप्रेसवे के तमाम उन नालों से लोगों को निकालकर आज लियारी एक्सप्रेसवे बन गई है। ये तो बहुत छोटे छोटे 3 नाले हैं। इसको करना ये चाहिए सबसे पहला काम एनक्रोचमेंट हटाने से पहले कि सूबाई हुकूमत के पास कराची में स्टेट लैंड बहुत बड़ी तादाद में पड़ी हुई है, 3 इलाकों में 2.5। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फनकारते मूजी मोदी की सांस फूलने लगी। पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद पर जंगी जुनून में मुब्तला मुज़ाकरात की मेज़ से भागती मोदी सरकार को भारतीय जितना पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए मजबूर करने लगी। भारत एक वक्त में चीन और पाकिस्तान के साथ महाज खोलने के काबिल नहीं, भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों का मोदी को मशवरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी तवील कशीदगी से तंग आए भारतीय अवाम भी मुजी मोदी के खिलाफ बोल पड़े। पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भारतीय हलकों में आवाजें उठने लगी। भारतीय दिफाई हलकों में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत एक वक्त में चीन और पाकिस्तान के साथ महाज आराई और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना होगा। चीन और पाकिस्तान के साथ महाज आराई से भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार हो चुकी है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय सरकार का पाकिस्तान के खत्ते में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश से भागना पुरानी रिवायत है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमन मुज़ाकरात की पेशकश की थी। जवाब में भारत ने रिवायती डगर पर चलते हुए मुज़ाकरात की बहाली की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपनी विक्ट्री तकरीर में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा था कि अगर भारत देरीना तनाज़ात के हल के लिए एक कदम उठाएगा तो पाकिस्तान जवाब में 2 कदम आगे आएगा। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से तंग आए भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठता है तो इससे दोनों का फायदा होगा। FATF पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि मोदी को किसी एक महाज पर कशीदगी कम करने की जरूरत है और इसके लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात चीन की निस्बत बेहतर हैं। भारत जंगी जुनून से बाज न आया, खित्ते में खतरे का बायस बनने लगा। चीन के साथ मशरक़ी सरहद में अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी। भारत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के मशरक़ी जिला अंजाव में कई बटालियंस तैनात की हैं। चीन ने पहले से ही दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश का जिला अंजाव चीन का इलाका है। दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी के तासुर को रद्द कर दिया है। जून में चीन और भारतीय फौज की झड़पों में भारत का भारी जानी नुकसान हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में कहा कि सऊदी इत्तेहाद ने यमन के शहर अल हदीदा पर हमलों में ममनुआ क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया।
5 साल से जारी जंग से मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जंग ने बदतरीन इंसानी बहरान को जन्म दिया। हथियारों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के 2008 के आलमी कन्वेंशन के मुताबिक क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल ममनू है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों में ममनुआ क्लस्टर बम्स के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए सख्त तनकीद की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद यमनी शहरों पर बमबारी के लिए क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल करता रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आगाह किया कि यमन के बाज़ इलाकों पर बरसाए जाने वाले डिफ्यूज क्लस्टर बम्स ने इलाके को बारूदी सुरंगों की शक्ल में तब्दील कर दिया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। समंदरी तूफान मिसाक जनूबी कोरिया के साहिल से टकरा गया। साहिली इलाके में 140 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही हैं। सैलाब का खतरा बढ़ गया। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। एक शख्स जान से गया। 2000 से ज्यादा अफराद आर्जी पनागाहों में मुंतकिल। मुल्क के जनूबी इलाकों में 1,20,000 मकानात बिजली से महरूम हो गए हैं और तवील अरसे से जारी पहाड़ों से जंगलात की कटाई समंदरी तूफान का सबब बनी। महकमा मौसमियात ने साहिली इलाकों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की पेशगोई कर दी है। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।